بادشاہ کا ایک مکار و عیار وزیر تھا جو مکاری سے پانی میں گرہ لگاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ عیسائی بچ جائیں گے، کہ وہ بادشاہ سے اپنا دین چھپا لیں گے۔ ان کو قتل نہ کر کہ قتل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دین کی خوشبو نہیں ہوتی، کہ وہ عود و مشک نہیں، وہ 100 غلافوں میں چھپا راز ہے، اس کا ظاہر تیرے ساتھ اور باطن خلاف ہے۔ بادشاہ بولا تو پھر کیا تدبیر کروں، اور اس مکر و فریب کا چارہ کیا ہو؟ دنیا میں بس کوئی عیسائی نہ بچے، نہ ظاہری عیسائی نہ چھپا ہوا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میرے کان و ہاتھ کاٹ دے، اور تلخ سہی مگر ایک حکم سے میرے ہونٹ اور ناک چیر دے۔ اس کے بعد مجھے سولی کے نیچے لے آ، یہاں تک کہ کوئی سفارشی مجھے تم سے مانگ لے، اور اس کی کھلے عام منادی کر، ایسے راستے پر کہ جو چوراہا ہو، اور اس وقت مجھے شہر بدر کر دے، تاکہ میں ان میں شر اور فتور ڈال دوں۔ یہ مثنوی کی تیسری داستان ہے۔ اس قصے کا تمہیدی حصہ آپ گزشتہ قسط میں ملاحظہ فرما چکے ہیں، جس میں مولانا رومی نے تعصب کا تعارف کراتے ہوئے اپنے قصے کے ان کرداروں کو پیش کیا تھا جو اس وصف کی قصے میں ترجمانی کریں گے۔ تعصب کا مطلب ہے ججمنٹس، پہلے سے بنائی ہوئی آراء۔ آپ کو پچھلی قسط یاد ہوگی جس میں بھینگا ایک بوتل کی 2 بوتلیں دیکھتا ہے، اور پھر جب ایک بوتل توڑتا ہے تو دوسری بوتل بھی فنا ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری کوئی بوتل تھی ہی نہیں۔ جب انسان متعصب ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو 2 میں بانٹ لیتا ہے، ایک وہ اوپینین جو کسی شخص یا سچویشن کے حوالے سے اس کے دماغ میں موجود ہوتی ہے، اور دوسری وہ حقیقت جو اس شخص یا سچویشن کی ہوتی ہے۔ تعصب کی عینک کے بغیر حقیقت کو کبھی دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور یہی اس قصے کا مرکزی خیال ہے۔ مذہبی تعصب کو خاص طور پر اس قصے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ انسان تعصب سے آزاد ہو تو موسیٰ یا عیسیٰ دونوں دوست نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی متعصب یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا تو وہ ان 2 دوستوں کو ایک دوسرے کا دشمن گردانے گا۔ تعصب اور ججمنٹس وہ پردہ ہیں جو انسان کی آنکھ پر پڑ جائے تو حقیقت اس پر کبھی بھی نہیں کھل سکتی۔ تعصب وہ عینک ہے کہ اگر سیاہ ہے تو باہر منظر جتنا بھی روشن ہو، سیاہی اس پر غالب رہے گی۔ غور سے اگر تم زندگی کو دیکھو تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ زندگی کل بھی خوبصورت تھی، آج بھی خوبصورت ہے، مگر آج مائنڈ اتنا طاقتور ہو چکا ہے، تمہارے پاس ججمنٹس اور اوپینینز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ حسن تم دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس قصے کا اگلا حصہ۔ وہ یہودی بادشاہ جو بربنائے تعصب عیسائیوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اس نے اپنے لیے ایک مشیر، ایک وزیر کا انتخاب کیا، ایک ایسا وزیر جو دھوکے کی نئی نئی ترکیبیں نکالتا تھا، جو مکر و فریب میں ماہر تھا۔ بادشاہ جب عادل ہو تو مشیر حکمت و دانائی کے حامل ہوتے ہیں۔ بادشاہ جب متعصب اور عیار ہو تو اپنے وزیر مشیر بھی وہ ایسے ہی چنتا ہے جو عیاری میں ماہر ہوں، جن کی زبانیں خنجر ہوں اور جن کے دماغ چالاک لومڑیوں کو ہراتے ہوں، جو جب بولیں تو یا زہر اگلیں یا پھر بڑے بڑے اور بے تکے دعوے کریں۔ ایسے وزیر مشیر آج کل آپ کو بآسانی نظر آ جاتے ہوں گے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وزیر اور مشیر جو بول رہے ہوں اس کا الزام بادشاہ وقت پر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حکمران کی چوائس ہیں۔ یہ وزیر مشیر بھدا اور برا بول کر اپنے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ حاکم وقت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔
सो वो बादशाह जिसका किस्सा मौलाना रूमी बयान कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही बादशाह था जिसने ऐसे मुशीर चुने जो अय्यार, मक्कार और लोगों के खून के प्यासे थे। बादशाह ने जो अपने लिए वज़ीर चुना, वो अब उसे मशवरा दे रहा है कि यूँ खुल्लम खुल्ला ईसाइयों के ख़िलाफ़ महाज न खोलें, न उनके ख़िलाफ़ अलल ऐलान मुखालफत करते फिरें, क्योंकि जब ये देखेंगे कि बादशाह ईसाइयों का दुश्मन है और ईसाई मज़हब को मिटा देना चाहता है, तो वो अपने दीन को ज़ाहिर करने से बचेंगे ताकि बादशाह तक उनके ईसाई होने की खबर ही ना पहुँचे। मक्कार वज़ीर ने मशवरा ये दिया कि इन ईसाइयों को कत्ल न किया जाए, क्योंकि इस कत्ल व गारत का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जब कुछ ईसाई कत्ल होंगे तो लोग अपना मज़हब छुपाने लगेंगे कि कहीं वो भी जान से हाथ न धो बैठें। यूँ बादशाह के लिए ईसाइयों और ईसाइयत का ख़ात्मा, जो उसका सबसे बड़ा जुनून था, मुमकिन न हो सकेगा। गौर करें तो उस दौर का ये वज़ीर और हमारी आज की दुनिया के वज़ीरों का मामला कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये वज़ीर भी बादशाह को ममलिकत का इंतज़ाम संभालने में हिकमत और तदब्बर से काम लेने का मशवरा नहीं देते, बल्कि जो बादशाह और हुक्मरान के रुझानात होते हैं उनकी तकमील के लिए चालें सिखाते नज़र आते हैं। वज़ीरों का मामला तो ये है कि वो आज की दुनिया में जहाँ जमहूरियत का राज है, चाहें तो ऐसी पॉलिसियाँ बना सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं कि एक दफ़ा जो वज़ीर आज़म या सदर बन जाए तो ताउमर सदर और वज़ीर आज़म रह सकता है। लेकिन उसके लिए आदिल, दाना और हकीम वज़ीरों की ज़रूरत होती है, और ऐसे वज़ीर लाजमी बात है उस वक्त ही चुने जा सकते हैं जब ख़ुद बादशाह गैर मुतअस्सिब, आदिल, दाना और हकीम हो। मगर ये यहूदी बादशाह तो था ही भेंगा। तासुब और ईसाइयों के ख़िलाफ़ नफ़रत ने इसकी बसीरत और हिकमत को पर्दों में छुपा दिया था। इसलिए उसने जो वज़ीर चुना वो भी काया और इंतहाई मक्कार था। उस वज़ीर ने अपनी मक्कारी बादशाह को सिखाते हुए कहा कि देख बादशाह, इन ईसाइयों को कत्ल न कर, वरना ये होशियार हो जाएंगे और अपना दीन छुपा लेंगे, और जब ये अपना अकीदा छुपा लेंगे तो तू इनको पहचानेगा कैसे और मिटाएगा कैसे, क्योंकि दीन की कोई खुशबू तो होती नहीं जो ज़ाहिरी नाक सूंघ ले। दीन ऊद व मुश्क तो नहीं कि तू लोगों को सूंघ सूंघ कर उन्हें कत्ल कर सकेगा। दीन तो 100 गिलाफों में छुपा इंसान का सबसे कीमती भेद है। मौलाना रूमी के इस शेर पर ज़रा गौर करें तो इसमें दीन की हकीकत का राज भी बयान किया गया है। नादान लोग दीन को लिबासों, दाढ़ियों के साइज़, बोलने और सलाम दुआ के तरीक़ों, खाने और सोने के अदब आदाब में तलाश करते हैं, मगर दीन तो असल में दिल की उस हालत का नाम है जब वो फितरत के दिल के साथ हम आहंगी से धड़क रहा होता है। खैर, जब बादशाह ने मक्कार वज़ीर की ये बात सुनी तो उसने कहा कि फिर मैं क्या तदबीर करूं, और ये जो ईसाई मकरो फ़रेब पर उतर आएं इनको कैसे पहचानूं, क्योंकि मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि दुनिया में कोई ईसाई ना बचे, चाहे वो अलल ऐलान हो या दिल में छुपा हुआ। मैं इस दुनिया से बस ईसाइयों का ख़ात्मा चाहता हूँ। ठीक वही हरकत जो हर दौर के गैर आदिल और फरेबी हुक्मरान करते आए हैं। वो वज़ीरों को चुनते ही इस बुनियाद पर थे कि वो बादशाह की चाहतों को, ख्वाहिशों को मुमकिन कर सकें। वो अमूर ममलकत की खुश उसलूबी से तकमील के लिए तो चुने ही नहीं जाते। ऐसे बादशाहों को फिर वज़ीर भी वैसे ही मिल जाते हैं। इसलिए मक्कार वज़ीर ने फिर बादशाह को एक अय्याराना तरकीब बताई कि किस तरह ईसाइयों का मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सकता है। उसने बादशाह को कहा कि ईसाई मज़हब और ईसाइयों के ख़ात्मे का एक ही तरीका है कि कोई उन्हीं के दरमियान हो, कोई ऐसा जिस पर वो एतमाद करते हों, जिससे वो अपना अकीदा कभी भी छुपाने की कोशिश ना करें। इसलिए बादशाह, तू एक तल्ख फ़ैसला कर। ये फ़ैसला मेरे लिए मुश्किल सही, मगर यही तुम्हारी मुराद के बर आने की सबील हो सकता है।
تو सरेआम एक हुक्म जारी कर जिसमें मेरे कान और हाथ काट देने का ऑर्डर हो और सरेआम मेरी फांसी का इंतज़ाम कर। ठीक उस वक्त जब मुझे फांसी होने लगे तो किसी की सिफारिश को कबूल करते हुए मुझे माफ़ कर दे। ये फांसी और माफ़ी सरेआम किसी चौराहे पर हो ताकि हर एक तक ये खबर पहुंच जाए कि बादशाह ने मेरे दिल से ईसाई होने, छुपे हुए ईसाई होने को पकड़ा है और ये सज़ा दी है। और जब मुझे माफ़ी दे तो मुझे शहर बदर कर दे ताकि मैं ईसाइयों के गिरोह में शामिल हो जाऊं और फिर उनमें फतूर भी डालूं और उनकी ठीक ठीक तादाद और उनकी मौजूदगी की दुरुस्त इत्तला भी तुम तक पहुंचा सकूं ताकि फिर तू अपना काम कर सके और उनका खात्मा कर सके। गौर से देखें, यही कुछ आज भी हो रहा है। कितने वज़ीर, हुकूमती हुक्काम होते हैं जो बादशाह के लिए अपना दीन, अपना ईमान बेचते हैं, माली मनफियत हासिल करते हैं और कितने ही इल्ज़ाम अपने सर पर लेते हैं ताकि हुक्मरान, वज़ीर आज़म, सदर उन इल्ज़ामात से बच जाए। तअस्सुब एक ऐसा खेल है कि जब ये हुकूमती ईवानों में खेला जाता है तो मुल्कों के लिए निरी तबाही लाता है। तरक्की पजीर मुल्कों के जमहूरी ढांचों को भी ज़रा गौर से देखें। साफ नज़र आएगा कि हुक्मरान अपने दौरे हुकूमत में रियाया की फलाह से ज़्यादा मुखालिफ जमातों की तबाही में इंटरेस्टेड होते हैं और इसी बुनियाद पर ही वो वज़ीर और मुशीर चुनते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि जो कांटे वो किसी के लिए बिछा रहे हैं कल को यही कांटे उनके अपने पैरों में चुभेंगे। कितनी कानून साजियाँ हैं जो एक जमहूरी हुक्मरान मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए असम्बली से कराते हैं और एक वक्त आता है कि वही कानून खुद उनके अपने गले का फंदा बन जाते हैं। इस किस्से में आगे क्या हुआ ये हम अगली एपिसोड में जानेंगे।